Good morning, students. Today we are going to discuss narrations type 3. Narrations type 3 means when the reporting verb is in past tense and reported speech has either a universal truth, general truth, or a proverb or a historical fact. There may be a scientific fact, a mathematical fact, or anything else which is assumed to be a fact or true always. In this way, how do we change them from direct speech to indirect speech? First of all, let us take some examples. He said, here reporting verb is in past tense एंड कोमा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है ये है गॉड इज एवरीवेयर मीन्स दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ. गॉड इज एवरीवेयर मीन्स भगवान हर जगह विद्यमान है. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जनरल ट्रूथ है. जब इस तरीके का जनरल ट्रूथ या कोई प्रोवर्ब या फिर कोई फैक्ट हो तो उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करते, उसका टेंस चेंज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, ही सैड गॉड इज एवरीवेयर. ही सैड कोमा को रिमूव करेंगे, इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करेंगे, कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज करेंगे. अब चूंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सैड टू मी, टू हिम, टू मोहन, कुछ भी नहीं है. जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसे सैड को टोल्ड में चेंज नहीं करते, सैड को सैड ही रहने देते हैं और दैट कंजंक्शन लगा देते हैं दोनों क्लॉजेज को ज्वाइन करने के लिए. ही सैड दैट गॉड इज एवरीवेयर, केवल इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देंगे और फुल स्टॉप यहां लगा देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ को हम टेंस चेंज नहीं करते. सेकंड एग्जांपल, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, sad to, and here is the object of the reporting verb clause. Subject the teacher, verb and object. In this case, we shall change this sad to into told. But there is a historical fact in the clause of reported speech. India got freedom in 1947. This is a historical fact and this is true. This is a fact. That's why we shall not change the tense of this historical fact while changing into indirect speech. For example, the teacher told the students that India got freedom in 1947. केवल हम इन्वर्टेड कोमास को कोमा को रिमूव कर देंगे और दैट को कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे और एज इट इज उस फैक्ट को लिख देंगे. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. शी सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. दिस इज a well-known saying, this is a well-known moral, a well-known proverb. We shall not change it because it is always true. It is always treated as true. Now, there is no object of the reporting verb clause. She said that, we shall not change this sad into told. She said that, remove comma and inverted commas. Use that as conjunction and write the proverb as it is. Honesty is the best policy. In this way, if there is a universal truth, a proverb or any fact, either it is a scientific fact or it is a historical fact or a mathematical fact,
we shall never change them. We shall never change their tense while changing them into indirect speech. Now, I am going to take a few more sentences. When reporting verb is in past tense, then reported speech may have questions, means interrogative sentences, followed by a sign of interrogation at the end of the sentence. In case of questions, if reporting statement is a question, then question may be of two types. First is questions beginning with WH words. These questions are known as open questions. For example, what is your name? Why are you crying? All the questions beginning with WH words are known as open questions. Second, questions may begin with either helping verb or with a modal verb. If the questions are beginning with verbs, either a helping verb or a modal verb, then these type of questions are known as yes-no questions or closed questions. They are known as closed questions or yes-no questions because we can answer them either in yes or in no. If the question is beginning with WH word, we use no conjunction. The same WH words acts as the conjunction in indirect speech. But when the question beginning with a verb, then we use conjunction either if or whether. In this way, we can use two conjunctions, one of them if or whether. Now next is a reported speech part or quoted part may have imperatives, means imperative sentences. They may have commands or orders. They may have requests. They may have advice. If they have command, request or advice, we change them into indirect speech in a different way. We shall discuss these in details later. Now, there may be an exclamatory sentence in the quoted part of direct speech. Now, and this indicates or expresses either an exclamation or a wish, followed by a sign of exclamation. These may be three types of sentences in the quoted part of direct speech. We can change them into indirect speech in different ways. We shall discuss one by one. First of all, we are going to discuss how to change interrogatives when the quoted part has or contains questions or interrogative sentences. Now, we are going to change type 4 sentences from direct speech to indirect speech. Type 4, in which the reporting questions are given, means questions beginning with WH words or questions beginning with either helping verbs or modal verbs. दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं. अब हाउ shall we change them into indirect speech? Follow these rules. First, if reported speech part of direct speech contains a question, then said to is changed into either asked or inquired depending upon the sense of the question. Either asked or inquired. Number 2, remove comma and inverted commas as we do in all other types. Third is change tense accordingly, pronouns and adverbs as we have discussed
regarding the rules of change, and at last change into assertive sentence means the given question is changed into an assertive sentence in indirect speech. Means this question mark is replaced with full stop. इसको चेंज करने का मतलब क्या है? बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं. A question has a helping verb before the subject, but an assertive sentence has subject before the helping verb, means a helping verb after the subject. While changing into indirect speech, always follow this rule: a place helping verb after the subject, which was before the subject in the interrogative sentence. In this way, by following these rules, we can change the questions into indirect speech. Let us take some examples and learn how to change questions into indirect speech. First example is, I said to him, "Who are you?" यहां हमें दो चीजें देखनी हैं. सबसे पहला, ये जो रिपोर्टिंग क्वेश्चन है ये WH वर्ड से शुरू है या हेल्पिंग वर्ब से? WH वर्ड से है. अगर ये WH वर्ड से है तो कंजंक्शन, कोई भी वर्ड हम कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं. यही खुद हु जो वर्ड है, यही वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस. सेकंड, सैड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देंगे. लेट अस सी. आई सैड टू को आस्क्ड में चेंज करें, आई आस्क्ड हिम. नो कंजंक्शन इज यूज्ड हियर. द वर्ड WH word itself acts as a conjunction. Who? Now there is you, second person pronoun. It will change according to the object of reporting verb clause. Change you according to him, it will change into subjective case he. Now tense is who are you. Use of is, am, are. Is, am, are changed into was, were. Now who, he, was. Here are was used for you. Now use was because he is the singular subject. I asked him who he was. Now the helping verb is after the subject, so put a full stop at the end of the sentence. Second example, he said to him, "Why did you beat him?" Again the question begins with a WH word, means no conjunction will be used, and the tense is did you beat. Did plus subject plus V1, simple past tense. Why did you beat him? Now change. This is inquired, not asked. Now this said to we changed into inquired of. Always use preposition of after inquired. He inquired of him, not inquired him. He inquired of him. Why? Again the WH word acts as a conjunction. Why? Now you will be changed according to object, means him. It will change into he. Now how do we change a simple past tense? A simple past tense is changed into past perfect tense, means had plus V3. Why? He had beaten him. Him is the third person pronoun and third person pronouns are not changed. He inquired of him why he had beaten him. Next is, why are you crying? She asked me. यहां पर इस डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब क्लोज है वो बाद में दिया हुआ है. कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है, डोंट बी कंफ्यूज्ड.
कुछ नहीं है ये। इस रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम यहां से रिपोर्टिंग वर्ब के क्लोज को यहां ले जाएंगे। सी आस्क्ड मी, पहले से ही क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच में इसने आस्क्ड लिखा हुआ है, तो आपका काम और भी आसान हो गया, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। सैड टू होता तो हम आस्क्ड में चेंज कर देते, ये तो पहले से ही चेंज्ड है। तो शी आस्क्ड मी, अगेन WH वर्ड क्वेश्चन, व्हाई यू इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट ऑफ reporting verb. Object is me and according to me subjective case of you becomes I. ये चीजें आपको प्रोनाउन का जो चैप्टर था उसमें हमने सीखी थी कि सब्जेक्टिव केस सब क्या होता है किसके अगेंस्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। इसके तीनों केस हम पहले से सीख चुके हैं, इसलिए यू को हमने यहां आई में चेंज कर दिया। और टेंस कौन सा है? वाई आर यू क्राइंग, present continuous tense is it will change into past continuous tense. Now why I was crying and it will be assertive, so place a full stop. Now we are going to take a few examples of the questions, reporting questions beginning with modal verbs or helping verbs. First example is, he said to me, can you help me? Now the question begins with a modal verb, can. We shall use if as a conjunction. He said to me, this is a question. said to को चेंज करेंगे asked में, he asked me. Now use conjunction if. If you is second person pronoun, change according to me. I change can into could. If I could help me, first person pronoun, it will change according to subject of reporting verb he and accusative case of he is him. Now he asked me if I could help him. मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इसको चेंज कर दिया, मीनिंग वही है। Next question. The manager said to me, do you like working in sales? मैनेजर ने पूछा, क्या आप सेल्स में काम करना पसंद करते हैं? Do you like means कौन सा टेंस है? Simple present tense, use of do or does. Now said to is changed into asked. The manager asked me. Now this is a helping verb, do. Use conjunction if. The manager asked me if, change you according to the object of reporting verb. I, me से I बन जाएगा subjective case I, और ये क्योंकि simple present tense है, it will change into simple past tense V2. If I like को हम liked में change कर देंगे, if I liked working in sales. There is no difference. Now the manager said to me, do you like working in sales? The manager asked me if I liked working in sales. Put full stop at the end of the sentence. Now the third sentence is, the teacher said, comma, boys, have you finished your homework? अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है? देखो ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ है यहां पर। इस प्रकार से भी कई बार आपको सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमास के अंदर मिल जाएगा। इससे भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम बाहर ले आएंगे। इसका मतलब वही है, द टीचर सैड टू द बॉयज। क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होता है, हैव से, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। अब हम कैसे चेंज करेंगे? द टीचर, चूंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए द टीचर आस्क्ड द बॉयज। सैड टू को हम यहां आस्क्ड में चेंज कर देंगे। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव, किस में चेंज करेंगे?
past perfect interrogative means had plus V3. The teacher asked the boys if you यहां पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज होगा और बॉयज के अकॉर्डिंग ये दे में चेंज हो जाएगा. इफ दे हैड फिनिश्ड, योर भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसको हम बॉयज के अनुसार देयर में चेंज कर देंगे, देयर होमवर्क, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पुट फुल स्टॉप. In this way, we have learnt how to change reporting questions from direct speech to indirect speech. Now we are going to learn type 5. Reporting commands, requests और advice. जब डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में कमांड्स हों, रिक्वेस्ट हों या एडवाइस हों, तो हम उनको कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. इसके लिए हैव ए ग्लांस एट द रूल्स फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्टिंग वर्ब. चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, बेग और फॉरबिड अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द स्पीकर. जिस प्रकार से उस कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस को देते समय स्पीकर का जो मूड है, रिपोर्टिंग वर्ब को उसी मूड के अनुसार हम इन वर्ड्स में चेंज कर देंगे. अगर वो पास्ट टेंस में है तो इनको भी हम पास्ट टेंस में ही यूज करेंगे. मीन्स सैड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, बेग्ड और फॉरबेड में चेंज कर देंगे. फॉरबिड का प्रयोग केवल तब करते हैं जब कमांड बहुत ही स्ट्रोंग हो. यह स्ट्रोंग कमांड के लिए यूज किया जाता है. जब किसी चीज को करने की सख्त मनाही हो, उस समय हम फॉरबिड का यूज करेंगे. सेकंड, रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसको हम टू इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे. मीन्स 2 + V1 में चेंज कर देंगे. टेंस, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स को अकॉर्डिंगली जिस प्रकार से रूल्स के अनुसार हमने सीखा है उसी प्रकार से हम चेंज करते रहेंगे. तथा नेक्स्ट रूल है, हम कोमा और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देंगे और सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे. कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम दैट कंजंक्शन का यूज यूजुअली नहीं करेंगे. अगर हम दैट कंजंक्शन का यूज करते भी हैं तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के इनडायरेक्ट सेंटेंस का स्वरूप बदलना होगा. फिर हमें टू के स्थान पर वर्ब से पहले शुड का यूज करना पड़ेगा. इस प्रकार से आप दैट बिना लगाए और दैट लगाकर भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं. आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इसको सीखने का प्रयास करें. फर्स्ट एग्जाम्पल इज, आई सैड टू हिम गो अवे एट वंस. गो अवे एट वंस. एट वंस से हमें पता चलता है कि यह कमांड है, ऑर्डर है. आई सैड टू, तो सैड टू को हम इस स्पीकर के मूड के अनुसार ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे. आई ऑर्डर्ड हिम. इसके बाद टू इन्फिनेटिव, कोमास को रिमूव करते हुए हम टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे. टू V1, टू गो अवे एट वंस. वेरी सिंपल. नेक्स्ट, आई सैड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स. मीन्स यहां पर एक एडवाइस दी हुई है. मैंने उससे कहा ओबे योर पेरेंट्स, मीन्स मैंने उसे एडवाइस दी है. एडवाइस और एडवाइस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. एडवाइस यहां पर नाउन है, सलाह, और एडवाइज सी और एस का डिफरेंस है. एडवाइज एक वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है. तो यहां पर हमें एडवाइस के लिए एडवाइज्ड वर्ब का इस्तेमाल करना है. आई एडवाइज्ड हिम. सैड टू को हमने एडवाइज में चेंज किया. ओबे को टू इन्फिनेटिव में, टू ओबे.
योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव हिज पेरेंट्स। आई एडवाइज्ड हिम टू ओबे हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट इज, अगर हम इसे दैट लगाकर इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टू के स्थान पर शुड लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम दैट, और इसको हम यहां पर ये प्रोनाउन ही यूज करेंगे, he should obey his parents, to make it clear that who should obey his parents, he should obey his parents। ये his इस he के लिए ही लगा है, इसके लिए हम इस he को एज ए सब्जेक्ट यहां यूज करेंगे और should लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द डॉक्टर said to the patient, you shall never take alcohol, you shall never take alcohol। यहां सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू के साथ शैल का यूज है। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग कमांड है। कोई ऐसा पेशेंट है जिसको अल्कोहल से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो जो बीमार है वो अल्कोहल की वजह से है, एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से है, तो डॉक्टर उसे सख्त हिदायत देता है या उसे मनाही करता है। इसके लिए इस स्ट्रॉन्ग कमांड के लिए हम फॉरबेड का यूज करेंगे। सैड टू को यहां पर हम फॉरबेड में चेंज कर देंगे। द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू टेक एल्कोहल, यू शैल नेवर टेक एल्कोहल। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है, इसको हमने कैसे चेंज कर दिया। अब यहां एक सवाल यह है कि हमने यहां पर नोट तो नहीं लिखा जबकि यहां नेवर था। यस, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फॉरबिड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, नोट इसमें शामिल है, हमें अलग से नोट नहीं लिखना है, अदरवाइज इट विल बिकम डबल नेगेटिव सेंटेंस, और डबल नेगेटिव सेंटेंस हमें नहीं बनाना। इसलिए यहां केवल बिना नोट के ही हम इस सेंटेंस को लिखेंगे जब भी हम फॉरबिड का यूज करेंगे। द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू टेक एल्कोहल, कभी भी इसको नॉट टू टेक एल्कोहल नहीं लिखना है। यहां बच्चे गलती करते हैं, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि नॉट फॉरबिड के अंदर ही शामिल है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सैड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। प्लीज, ये वर्ड हमें क्या बताता है? दैट देयर इज अ रिक्वेस्ट। प्लीज रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। शी सैड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। शी रिक्वेस्टेड हिम, सैड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच प्लीज से स्टार्ट है। शी रिक्वेस्टेड हिम टू इन्फिनेटिव, टू वेट, हियर को देयर में यूज कर देंगे। टिल, आई को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को शी के अनुसार शी में चेंज कर देंगे। शी रिटर्न्ड, क्योंकि यहां पर टिल आई रिटर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम सिंपल पास्ट में शी रिटर्न्ड में चेंज करेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही सैड टू चिल्ड्रन डू नॉट ईट टू मच स्वीट्स। यहां पर डू नॉट ईट टू मच स्वीट्स, ज्यादा स्वीट्स खाने से मना किया है, एडवाइस दी है। द डॉक्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, डॉक्टर एडवाइज्ड द चिल्ड्रन, नॉट द स्टूडेंट्स। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वही रखेंगे हम, द चिल्ड्रन नॉट टू ईट टू मच स्वीट्स। यहां आपको ध्यान रखना है टू इन्फिनेटिव से पहले नोट लगाना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में नॉट टू V1 लिखेंगे, ना कि टू नॉट V1। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम रिपोर्टिंग कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस और रिपोर्टिंग विश into indirect speech. Let us have a glance at the rules first. Reporting verb is changed into
exclaim, wish, bless, congratulate, applaud, or pray, depending upon the mood of the speaker, depending upon the emotion in the reported speech. Now, second is omit interjections. In case of exclamatory sentences or wish, there is always a mark of exclamation, and there is an exclamatory word, an interjection. Remove this interjection in case of indirect speech. Identify the sentiments hidden behind these exclamatory words, hidden behind these interjections, and express that sentiment using some adverb phrases like exclaimed with joy, exclaimed with sorrow. In this way, उसमें जो इमोशन है, जो सेंटिमेंट है, जो भाव है, उसको हम इस प्रकार के एडवर्ब फ्रेज से रिप्लेस कर देंगे या एक्सप्रेस करेंगे. कंजंक्शन दैट यूज करेंगे और सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बना देंगे. कोमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देंगे एंड चेंज टेंस, प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स अकॉर्डिंगली एज वी हैव डिस्कस्ड. अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाएंगे. आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, हुर्रे आई हैव वन द गेम. हुर्रे खुशी का भाव है, खुशी से उछल पड़ने का भाव है. हुर्रे आई हैव वन द गेम ही सैड. यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का क्लॉज लास्ट में दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे ले आएंगे. ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय. इसके पीछे, इस हुर्रे के पीछे जो सेंटिमेंट है, जो भावना है, वो खुशी की है, इसलिए ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय. दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे. दैट आई हैव वन द गेम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे. हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे. आई हैव वन द गेम, आई को हम ही में चेंज कर देंगे. इस ही के अनुसार हैड वन द गेम, पास्ट परफेक्ट टेंस. वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज शी सैड टू देम, ब्रेवो यू हैव डन वेल. यहां पर बहादुरी, ब्रेवो शाबाशी देने की बात है. इट मीन्स शाबाशी दी है, applauded. सी applauded them saying that. क्या कहते हुए शाबाशी दी? saying that कंजंक्शन लगाएंगे. यू को हम them के अनुसार they में चेंज कर देंगे. have done को had done में चेंज कर देंगे. well, she applauded them saying that they had done well. next is the teacher said to me may you live long. wish है यहां पर. the teacher wished that I might live long. may को might में चेंज करेंगे. you को me के अनुसार I में चेंज करेंगे. I might live long. एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे. नेक्स्ट इज he said to me congratulations. वेरी सिंपल. he said to me, यहां डायरेक्ट इस कॉन्ग्रेचुलेशन को ही हम वर्ब बना करके यूज करेंगे. he congratulated me. वेरी सिंपल. she said to me good morning. she wished me. good morning विश किया जाता है. she wished me good morning. कुछ भी आ जाए, ये बड़े सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं. he said to us welcome. he welcomed us. he said to me thank you. he thanked me. इस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी और विश वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.